महाराष्ट्र में जो सियासी भूचाल आया है उसको लेकर हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने कुछ देर पहले शरद पवार से बात की। उन्होंने ये बताया कि मैं आज सतारा जा रहा हूं, कल से मैं किसी के संपर्क में नहीं हूं। पार्टी के सभी कानूनी मसले जयंत पाटिल देख रहे हैं, वही फैसला कर रहे हैं। सुनते हैं पूरी बातचीत। Pawar sir, good morning. Sohit here from NDTV. I am really sorry to call you this early morning, sir. Sir, just wanted to know, apart from Satara, have the MLAs tried to reach you? What exactly is happening? Just wanted a bit of detail for that, sir. No, I have not contacted anybody. I'm just now leaving for Satara. I have not approached anybody. So you haven't approached anybody, but Yeah. now are we also trying to take this ahead legally, like fight in the court what Shiv Sena did? We saw yesterday that the notices are being made as well. No, I just said I don't know. Our state president, Mr. Jayant Patil, he is aware about all these things. I consult him, but he will not be available at this time. Sir, are you also, my final question, are you also in touch with the MVA leaders, the opposition leaders? If you could tell us who all contacted you, and what about the opposition unity meet that was going to happen in Bangalore? No, nothing. We are meeting in Bangalore. Yesterday, those who contacted me was Mamata Banerjee, then secondly Nitish Kumar, thirdly Mr. Kejriwal, fourthly Mr. Congress President. Hello. Yes, sir. Congress President. Congress President. Then Rahul Gandhi. Then Sonia Ji. Mrs. Gandhi. This Karnataka CM. Then Stalin. Tamil Nadu CM. So generally these leaders did contacted me, and we just discussed that we are meeting to Bangalore. I think date is changed, sometimes 17, 18 Okay. or 16, 17, one of the days. And that opposition or other colleagues, we are meeting for our future course of program after our Patna meeting. Sir, will this also impact the family relation, or what do you think? Why did this happen at all, sir? What are you asking? Whatever happened yesterday, will this impact the relation within the family? And why do you think this entire thing happened? Because what we know is The that... question, family, there is no problem. Because in family, we don't discuss who can doing this type of political things in family. It's everybody individuals his own decision. Okay, I'm getting late. Okay. Thank you so much, sir. I will just use this for television for NDTV. Thank you so much for speaking to NDTV, sir. ये चर्चा तो काफी समय से थी कि एनसीपी नेता अजित पवार एक बार फिर से बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस तरह अचानक से, और साथ में प्रफुल्ल पटेल और छगन भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। दोपहर में जैसे ही अजित पवार के राजभवन जाने की खबर सामने आई, राज्य की राजनीति में भूचाल सा आ गया। प्रफुल्ल पटेल ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, साथ ही 8 अन्य विधायकों को भी मंत्री बनवा दिया। उधर शरद पवार ने साफ कहा कि वो अजित पवार के साथ नहीं है, इसीलिए अजित पवार और उनके साथ गए लोगों के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की एनसीपी नेता अजित पवार ने पिछले 4 साल में तीसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के राजभवन में इसके लिए आनन फानन में तैयारी की गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी जल्दी में पहुंचे। अजित पवार समेत कुल 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें शरद पवार के खास रहे छगन भुजबल भी शामिल हैं। बाकी साथ हैं दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धर्मराव अत्रम, संजय वनसोड़े, अदिति तटकरे, धनंजय मुंडे और अनिल पाटिल। लेकिन सबको इससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष
और शरद पवार के सबसे करीबी प्रफुल्ल पटेल शपथ ग्रहण के दौरान राजभवन में मौजूद रहे। इसी वजह से ये सवाल उठे कि क्या इस पूरी कवायद में शरद पवार भी शामिल हैं। शपथ के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित पवार ने प्रधानमंत्री मोदी को देश को आगे ले जाने वाला मजबूत नेता बताया और राज्य की जनता के विकास के लिए सरकार के साथ जाने का दावा किया। लेकिन क्या उन्हें शरद पवार का भी समर्थन है, इसका सीधा जवाब देने से वो बचते रहे। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद है। सभी एक नहीं, सभी का आना, सभी में सब आते। कुछ ही घंटे बाद पुणे में मौजूद शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर खुद ही साफ कर दिया कि वो अजित पवार के साथ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रफुल्ल पटेल ने उनका भरोसा तोड़ा है, लेकिन पवार के मुताबिक उनके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब 56 में से 50 विधायक उन्हें छोड़कर चले गए थे, तब भी उन्होंने पार्टी को फिर से खड़ा किया था। मेरी नाराजगी वह किसी के पास नहीं, मगर प्रफुल्ल पटेल एंड तस्करे ये दोनों को मैंने अपॉइंट किया था जनरल सेक्रेटरी, और जनरल सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट की जो गाइडलाइन होती है वो छोड़कर कोई गलत कदम उठाया तो ठीक नहीं। महाराष्ट्र में अचानक हुई इस राजनीतिक उथल पुथल पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग कर पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाया। आज महाराष्ट्र में जो तमाशा बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी घर तोड़ सकती है। जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। आप देखना लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितनी नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है, सत्ता में बने रहना, चाहे गरीब, किसान, वंचित, शोषित, पिछड़े, बहुजन, कहीं उनको स्थान न मिले। बीजेपी ने पहले शिवसेना को तोड़ने में मदद की और उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब अजित पवार को साथ लेकर एनसीपी को तोड़ने का काम किया है। साफ है 2024 के आम चुनाव की रणनीति के तहत बीजेपी अब पूरी आक्रामकता के साथ मैदान में उतर आई है। महाराष्ट्र में आज जो हुआ उसे साल 2024 के चुनाव के पहले विपक्षी एकता के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि शरद पवार के तेवर से साफ है कि वो बीजेपी के आगे झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ जानकार ये भी मानने को तैयार नहीं कि एक बार झटका खा चुके अजित पवार शरद पवार के बेहद करीबी प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल बिना शरद पवार की सहमति के इतना बड़ा कदम उठाएंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, अशोक महाडिक और अपने सहयोगी सोहित मिश्रा के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। एनआईए ने उत्तर भारत की जेलों में बंद 10 से 12 बड़े गैंगस्टर्स को अंडमान निकोबार की जेल भेजने की सिफारिश की है। इस सिलसिले में एनआईए ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। एनआईए का यह कहना है कि ये बड़े गैंगस्टर अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर उत्तर भारत की जेलों में बैठकर गैंग्स चला रहे हैं और अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इसका नतीजा है कि जेलों तक में गैंग वॉर नजर आ रहे हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में ये तक कहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साम्राज्य बिल्कुल दाऊद इब्राहिम की तर्ज पर चल रहा है। देश के बड़े गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। सूत्रों के मुताबिक पत्र में मांग की गई है कि उत्तरी भारत और खासतौर से तिहाड़ जेल में बंद 10 से 12 बड़े गैंगस्टरों को अंडमान निकोबार की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। अंडमान निकोबार दिल्ली की तरह केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहाँ इन अपराधियों को शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि जानकार कहते हैं कि यह इतना आसान नहीं होगा। अगर अंडर ट्रायल है तो आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट की परमिशन लेके आप उस अंडर ट्रायल को किसी बाहर की स्टेट में भेज सकते हैं, बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं। इसके अलावा कुछ प्रिजनर हैं जो कन्विक्ट है,
कन्विक्ट को आप स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेके उसको एमएचए जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेज सकती है। ऐसे ही डिटेन्यू हैं, जैसे अमृतपाल सिंह है वो डिटेन्यू था। डिटेन्यू के केस में आप किसी प्रिजनर को किसी भी स्टेट की जेल में रख सकते हैं क्योंकि उसमें कोर्ट प्रोडक्शन नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने पहले भी एक पत्र गृह मंत्रालय को लिखा था जिसमें कहा गया था कि तिहाड़ जेल में बंद 25 गैंगस्टरों को दक्षिणी भारत की जेलों में शिफ्ट किया जाए। दरअसल बड़े गैंगस्टर जेल में बैठकर अपना गैंग चला रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में अपराध को अंजाम दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर या तो जेल से या फिर देश के बाहर बैठकर गैंगस्टर करोड़ों की जबरन वसूली भी कर रहे हैं। जेलों में इनके बीच गैंगवार की भी खबर सुर्खियां बटोरती है। लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, पवन नेहरा, लवप्रीत बजाज, बलकरण सिंह, नीरज बवानिया और काला जठेड़ी जैसे गैंगस्टर जेलों से अपराध को अंजाम देते हैं, जबकि गोल्डी बराड़, अर्श ढल्ला, अनमोल बिश्नोई, सचिन बिश्नोई, कपिल नंदू जैसे गैंगस्टर विदेश में बैठकर गैंग संचालित कर रहे हैं। एनआईए का कहना है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का टेरर सिंडिकेट अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जैसा है। एनआईए के मुताबिक लॉरेंस का गैंग पूरे उत्तरी भारत में फैला है। उसके गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिसमें 300 अपराधी पंजाब से जुड़े हैं। बिश्नोई गैंग ने करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन से कमाए और वो पैसा हवाला के जरिए विदेशों में भेजा गया। इन अपराधियों के तार खालिस्तानी आतंकवादियों से भी जुड़े होने का संदेह बताया जा रहा है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक अगर इन गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करना है तो इन्हें दूर की जेलों में रखना होगा। हालांकि इस पर गृह मंत्रालय क्या फैसला लेगा ये देखना होगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।